गुड मॉर्निंग मैत्रीशरण जी। जी जी, भूषण देवान जी को नमस्कार। कैसे हैं आप? बस सॉरी आई मिस्ड योर कॉल इन द मॉर्निंग एक्चुअली। बेसिकली मैं एक तो आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा कॉल हमेशा रिकॉर्ड होता है और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होता है। इसका मकसद है कि एक ऊर्जा है, क्या उस ऊर्जा के सहारे हम अपने देश को बदल सकते हैं, उसका मकसद ये है। मैंने आपके क्रांतिकारी बातें सुनी हैं। आप ये बताओ, सही मायने में क्या आप अच्छा भारत पैदा करना चाहते हो? वो तो उसका डेफिनेटली आंसर यस है। अच्छा भारत जो है वो हमें डेफिनेशन समझनी पड़ेगी पहले, क्या विजन है। उसके लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि अच्छा भारत है क्या। तो उसमें 5 मौलिक अधिकार और 21 महाविधाओं महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत। यदि हम उसमें आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हूँ। अच्छा, फॉर्मर डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश, या I was DGP Railway, I was DGP Home Guard, Civil Defense, Disaster Management and SDRF, and I was the DGP Police Reform also. Achha, and also you were DGP of the Madhya Pradesh Police? No, I was in these 3 posts basically. Not, but former DGP means it's a rank basically. So these all posts are the former DGP. I understand. And basically, in fact, I was invited as a speaker and invited delegate, me and my wife, to Chhattisgarh University. And I was in for 4-5 hours on return to Bombay after the 4 days conference. I was in Bhopal actually. Oh, great. Great. I would have met you. I don't know. I didn't know it. भूषण जी, ऐसा है कि everything happens as per the design of the cosmos. So it was not intended that we should meet in person. Probably that must have been reason. Otherwise, we could have spoken earlier. Bhopal, and which batch you are, sir? I am from 1984 batch. I am 40th NDA and 73 commission. I have fought 71 more, and 40th commission means 68. 40th NDA means, I'm sure you know NDA Khalagwasla. Yeah. So I was there from 1968 to 71 in NDA Khalagwasla. Oh, wow. And basically, and I had been 71 more immediately after my. That's okay, no problem at all. And then after that, I have been. So, like you mentioned about your police jobs. So, first innings was in the Indian Navy. Second inning was in the corporate. I have been vice president of TCS and president of Tanla Solutions and senior vice president Adani Port. Wow. That was my second inning, 12 years. And then about 12, 13 years. Then after about 15, 16 years, I've been in education. I've been vice chancellor of 3 universities. Oh, wow. And including Bhopal, I was of course vice chancellor. I was staying in the Paras Hermitage, you know, the Ashma Mall, Shangamad Road, beyond this, Barkatullah University. I know that. I know. Yeah. Where do you stay in Bhopal? I stay in Bhopal. There's one IPS colony. So there are, I stay in IPS Bangla number 12. Okay, lovely. So fine. Definitely, I'll see that आपका जो ये आपने कब से शुरू किया हुआ है CFP जो है? Basically, I can put this way that I gave a concept note to Government of India in 2017. Okay. As per the procedure, it was examined for the 2 long years. It was sent to the all state government, and then there's a peer review also. Okay. So after peer review, it was accepted as a national police mission for crime-free Bharat. Okay. And since 2019, I am the nodal officer of crime-free National Police Mission for crime-free Bharat.
And this is a government organization or Yeah, an NGO? it is a, let me explain. It is a Yeah. government of India organization. It is basically before arrival of the Narendra Modi, it was being operated from Prime Minister office. Okay, lovely. On arrival of Mr. Narendra Modi, it was shifted to the home, and from home it was shifted to the BP R&D. So Yeah. now initiative of the National Police Mission is being housed, and it is the responsibility of the Bureau of the Police Research and R&D. Development to provide the support. Basically, Okay. it is an independent kind of organization which is being hosted, supported, guided, and providing all kind of the support system by the BP R&D. Okay. So, And BPR&D is Delhi-based organization? yeah. It is a very big. I mean, it is a nodal organization of government in India to conduct research on police subject. Actually, dear sir, I want to tell you that, I mean, I daily 2-3 interviews on the TV debates I am there. But I tell you, whether you talk about Pahalgam, you talk about anywhere, you talk about, my PhD was in business and human rights. I had gone to Geneva for that in 2019. So I'm MTech from IIT Delhi, but my PhD was human rights. It's true about me also. I am MTech in Industrial Engineering. I completed my MTech in 1983. And thereafter, I joined IPS officer, basically. Oh, 83 you complete. I see. 83. I completed MTech while in the Navy from IIT Delhi. And you did MTech from where? From IIT Delhi only. Really? Wow. Yeah. For first year I was in Jwalamukhi, and then second year then I was in Shivalik. Lovely. I was in Nalanda. Of course, I used to stay in Cousin Road apartments, used to commute from there. Me and study leave. Not study leave. It was not study leave. It was a transfer to Delhi, and I was doing MTech basically. Great. And my wife, she's a MD ophthalmology from AIIMS. Oh, great. We got married in 79. So we were there. SDMA. I used to travel to IIT. She used to come this side to Green Park AIIMS. She was a registrar there. Lovely. Achha, okay. So basically, what I was trying to say is that, I don't know. Do you think there is a serious political will to reform police? If you allow me, I will elaborate about the political will. Okay, please. The thing which you say political will, it is a political fraud. Even in 1947, the political fraud had been committed on the people of India. Yes. There was a transfer of power from highly afraid people. They were highly afraid of the situation at that point of the time, and they were afraid to be butchered. Yes, they were afraid to be if please allow me to speak for almost 2 minutes, because then I will explain that background. I am very sure you must be aware of that, because you have handled so many things. So I am very sure that nothing will be new from my side, but I want to bring it on record. Yeah, sure. In a conversation with you. So what I am saying, there was one Lord Auchinleck, who was Commander-in-Chief of the British Indian Armed Forces, and he wrote a letter to Boville, who was the Viceroy. Correct. He said there is everywhere some kind of revolt-like situation, very close to the 1857, or even more than that, right? Yes. And it is happening on account of the trial of Azad Hind Fauj. Yes. And if the trial is not dropped, we will be butchered in India. Yes. Bhagna padega hame. So Lord Auchinleck was responsible for dropping off Azad Hind Fauj trial. It was dropped without anything. It was not postponed, it was just dropped. And it was on account of the letter and discussion of Lord Auchinleck with the Viceroy, Lord Boville, right? Right.
now he has not left at that. He created one exit plan that Okay. in a grave situation which we are undergoing, Yes. any day situation will arise that we have to run away from India. So who all will be taken out from India safely? That plan was named as a exit plan. Exit plan, अच्छा. Exit plan. And it was submitted to Lord Bovell and it was accepted by him. That reflects the grave fear under which the Britishers were operating. Yes. Under that situation, our just politician, our crooked politician, they handshaked with these people and accepted a transfer of power and signed an agreement that Subhash Chandra Bose will be handed over dead or alive to them. Correct. Now that reflects the kind of the fear under which they were operating, and we people, मैं कहूँगा दुष्ट politician, crooked politician, they accepted the transfer of power, accepting 565 states and 2 dominion. They were so bad people. जिनको हम महान कह रहे हैं वो महान नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं थी. वो इतने दुष्ट थे कि उन्हें चंद महीने पहले का एहसास था कि डायरेक्ट एक्शन डे में जो कोलकाता और आसपास किया गया, जिसमें thousands of the people were butchered, and the things only moved when that Kasai Gopal, he came out and he retaliated with such a thing that they made the life of the Muslims absolutely difficult. Before that, that precisely I am saying. So even a small child would have understood and appreciated when this country is being divided on the basis of the religion, there will be massacre. I mean, may I ask Mr. Bhushan, do you agree with... I totally agree. Pakistan se mere parents aaye hain. Okay, so then you have that kind of direct experience. Basically, you can narrate me n number of stories to substantiate my view. I mean, you must be having a number of stories which must have been told by your parents to you. So, Bhushan Saab, what I wanted to say that even a child who had the experience of the direct action day, it would not have been difficult for him to understand and appreciate when this country would be divided on the basis of the religion. They are bound to be massacred. Now, may I ask why they did not pay any attention about the safe transfer or safe transportation of the Hindus from Pakistan and vice versa from India to Pakistan? Why they did not do it? Why they don't? Then they created a constitution in which 80% of the constitution is coming from Government of India Act 1935. And whatever the 20% which was created by Dr. Ambedkar, that has been violated left, right and center. They created 55 acts against the spirit of that 20%. आप मुझे बताइए, वीपी सिंह ने जो है मंडल कमीशन जो है ना, is it not मंडल कमीशन is the violation of the spirit of the constitution? May I ask this question, Mr. Bhushan, to you? On this, I hope I can give a satisfactory answer, but my knowledge says that reservation was to be dropped after 10 years. On the other hand, this has been accentuated further by Shri Mandal Commission. That you are talking of the reservation. That is 100% correct. I am talking of the Mandal Commission. I understand. Whether the Mandal Commission... Further reservation, no? No. Why the Mandal Commission was framed against the basis, against the fundamental right of the Constitution. That precisely is my point. And this bugger, for his political gain,
Suicide. He did not bother how many people committed suicide. Yes, yes. टायर वगैरह पहन के जला लिया अपने आप को Yeah, लोगों nobody bothered. ने। ये बताइए, जब 1990 में कश्मीर में जो है नारे लगाए जा रहे थे कि मुझे कश्मीर चाहिए, 1990। हाँ 90 में, वाई जो है ना, नो एक्शन हैज बीन टेकन। बिल्कुल आज तक नहीं हुआ है। नहीं, क्यों नहीं हुआ? आई एम सेइंग वेदर देयर वुड बी अकाउंटेबिलिटी। 1975 में श्रीमती गांधी ने जो कुछ भी किया वो खुद जाके तो स्ट्रीट पे नहीं किया। दे हैव यूज्ड द पीपल लाइक मी एंड यू। 71 की बात कर रहे हैं ना? आई एम टॉकिंग ऑफ द 1975 to 77 emergency. Emergency, अच्छा। I am saying Srimati Gandhi has used the apparatus, and apparatus is made of the people like you and me. बिल्कुल। So for our little gain, we did all kind of the or followed all kind of the illegal orders. यदि हम जो है ना accountability act लेके आते कि everybody is accountable, bureaucracy is accountable, judiciary is accountable, or this is accountable, whosoever is doing anything which is beyond the accountability, he will be jailed, including the Prime Minister. Things would have changed. There is no accountability. We are the lords. भूषण साहब, हम लोग लॉर्ड हैं। अंग्रेजों ने हमें लॉर्ड बनाया है, जिसने इस तरीके की व्यवस्था दी थी कि आप कुछ भी कर लो। आप समझ रहे हैं ना? तो इसने इस तरीके की दुष्ट व्यवस्था हमको दी थी कि हम जनरल डायर जैसा जलियांवाला बाग में गोली चलाएं तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बताइए, कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल। इवन पुलिस में कैन अलाउड टू बीट पीपल। यूके गया था तो वहाँ पुलिस वुमेन ने आदमी को, यू किल पीपल, दैट इज द लाइसेंस गिवन अंडर लॉ। बिल्कुल, दैट इज द लाइसेंस गिवन अंडर लॉ। तो हम लोग लाट साहब बन गए और फिर इन राजनेताओं के जो न चरण सेवक बन गए। इन राजनेताओं ने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। करेक्ट। और फिर उसमें विनेबिलिटी खोजी और सभी राजनीतिक पार्टियों को दुर्जनों में, दुष्टों में, बाहुबलियों में, अपराधियों में और धनबलियों में विनेबिलिटी दिखी। राइट? मनी पावर, मसल पावर। हाँ, धनबली हो गया ना। बिल्कुल। और वो अभी तो पास किया मोदी जी ने कुछ क्लाइंट के बारे में जो है। एनीवे, वो देखेंगे क्या होता है। पर मुझे बताएं, ये DPR&D और गवर्नमेंट का सपोर्ट से जब गंगोत्री भ्रष्ट है तो हम बदलाव, मतलब जैसे JP नारायण लगे, ये बदलाव भूषण जी, यदि आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े हो जाएं तो ये बदलाव चंद दिनों में हो जाएगा। और हमें कुछ किसी के सामने धरना नहीं देना होगा, हमें दिल्ली नहीं जाना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। इसकी एक पूरी पॉलिसी मैंने बनाई हुई है जिसका हमने नाम दिया है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था। I will share those document with you। हमें सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर, और उसके लिए भी हमने ऐप बना दिया है। हमने इसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का भी गठन किया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टी। क्या नाम बताया? व्हाट आत्मनिर्भर? क्या नाम बताया? व्हाट आत्मनिर्भर? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, आत्म का ए और भारत का बी, ये सबकी पार्टी है जो कोई राजनीतिक कार्य नहीं करेगी। ये मैथिली शरण गुप्त यानी मैंने ही बनाई है और किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बनाई गई। इट इज नॉट इंटेंडेड टू जो है ना डू एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। इट इज इंटेंडेड। रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है। इट इज रजिस्टर्ड पार्टी। अच्छा, सिंबल भी मिला हुआ है। हाँ, इट इज रजिस्टर्ड पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ऑल स्टेट्स। अच्छा। या और ये उसमें अपना फ्री डोनेशन, टैक्स फ्री डोनेशन का भी है उसमें। कुछ पॉलिटिकल पार्टी को तो होता ही है ना, जो डोनेशन लेंगे उसको 100% विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। वो दो सब चीजें हैं, लेकिन वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही है कि हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये बनी क्यों है? ये बनी है लोगों को टिकट बांटने के लिए। और टिकट किस आधार पर मिलेगा? जो अच्छे भारत का संकल्प लेंगे। और अच्छे भारत का संकल्प हमें हर रविवार को दोहराना है। राइट?
और इसके लिए एक ऐप बनाया गया, ऐप के माध्यम से जुड़ना है। ये ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की मेरिट लिस्ट, गांव में जो नंबर 1 पे आएगा वो सरपंच बनेगा। एक मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, तो शहर के मोहल्ले में जो नंबर 1 होगा वो पार्षद बनेगा। फिर एक वो शहर की मेरिट लिस्ट बना रहा है, शहर की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आने वाला मेयर बनेगा। जिले में नंबर 1 आने पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। प्रांत में नंबर 1 आने पर मुख्यमंत्री, 2 और 3 में आने पर उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और दिल्ली में सबसे कम 70 हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 402 हैं। तो 70 से 402 की मेरिट लिस्ट में आने पर वह जो है विधायक बनेगा, और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाला वो प्रधानमंत्री, 82 में आने वाला जो कि 15% ऑफ द टोटल होता है, 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री, और 543 में आने पर सांसद बनेगा। तो इन लोगों को जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, टिकट देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनी है। भूषण जी, यू विल बी सरप्राइज, हमारे इस कॉन्सेप्ट के तहत जो व्यक्ति को मेरिट लिस्ट में आने के बाद टिकट मिल जाएगा और वो अपना नामांकन भर देगा, उस नामांकन भरने के बाद भी उसके पास ये एक शर्त रखी गई है कि आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं। मतलब वोट मांगना तो बहुत दूर की बात है, आपको ये कहने की स्वतंत्रता नहीं है कि आप उम्मीदवार हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे कि भैया जब हम यही नहीं बताएंगे कि हम उम्मीदवार हैं तो हम जीतेंगे कैसे? तो इसकी 2 स्ट्रेटेजी है। पहली तो जो इनकी स्ट्रेंथ है उसकी हवा निकालना है। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है? गरीबों के वोट खरीदना। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, गरीबों के वोट खरीदना, और जिनके वोट खरीदते हैं उन्हें ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। करेक्ट। और ये जो है पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूं। ये कहता हूं, ये कहते हैं तो अपनी पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। इन दुष्टों की, भूषण जी, इन दुष्टों की छाती फटती है ये कहते हुए कि मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूं, उनके लिए लड़ूंगा। इतने दुष्ट लोग हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? 100%। तो अब आप ये बताओ, तो हम क्या कह रहे हैं कि चूंकि इसमें जो हम उनको दिखा रहे हैं कि 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, अभी हम आपको समझाएंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा कि भारत में ऐसा भी संभव है क्या? यस, भारत में हर व्यक्ति जो है ना, वो उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको जो है उसके पोटेंशियल की रियलाइज करने वाली शिक्षा मिलेगी। तो पोटेंशियल को सबसे पहले पोटेंशियल को पहचाना जाएगा, उसका पाथवे बनाया जाएगा, पाथवे को छोटा छोटा माइलस्टोन में बांटा जाएगा, और हर माइलस्टोन। सॉरी फॉर स्मॉल इंटरप्शन। आपने भारत रक्षा मंच का नाम सुना हुआ है? नहीं सुना है। अच्छा, ये एक हमारा, मैं उसका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और ये 2015 से है, 2010 से है ये संस्था। और ये इसका एक हमारा वीपी हाउस में जो है, विठल भाई पटेल हाउस जो है आरबीआई के पास दिल्ली में, वहाँ पे ऑफिस है, एमपी फ्लैट है ना जो। और एक हमारा E7 अरेरा कॉलोनी में भोपाल में ऑफिस है। तो भोपाल का ऑफिस कौन देख रहा है? तो कोई ऐसे किसी को बना देते हैं। सूर्यकांत केलकर हमारे, जिम्मेवारी आप मुझे क्यों नहीं दे देते हैं? आपको, आप भोपाल की जिम्मेवारी मुझे दे दीजिए। हाँ, मैं आपको टच कराऊंगा। ये आपने कितने इलेक्शन लड़वाए हैं? नहीं, अभी तक तो मैं सिर्फ एक चुनाव खुद लड़ा हूँ, और वो भी एज ए इंडिपेंडेंट। तब तक हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। भोपाल से एमपी का चुनाव 2024 में मैंने लड़ा था, और जानता था कि बुरी तरह से हारना है। वो तो कितने वोट? लेकिन वो उसके पीछे मकसद था कि हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में जो है ना परिवर्तन लाया है, जिसको आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, आप इतने दुष्ट हो कि उस व्यक्ति को भी नहीं बता सकते। नहीं, वैसे वोट कितने मिले बाय द वे? मैं आपको पॉलिटिकल, मेरा भी ऐसा पार्टी का है, बता रहा हूँ। आपको वोट कितने मिले थे? 448। मैं यही कहने वाला था, 400-500 मिले होंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपके रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, और वो उन्होंने, हम एसबीपी, वो भी एसबीपी है, सर्वोदय भारत पार्टी लखनऊ के हैं वो,
तो वो हमने 19 में इलेक्शन में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया हुआ है, पार्टी डिफंक्ट है, बस डिफंक्ट ही समझी जाए। तो वो क्या है कि उसमें पार्टी में वो हमने खजुराहो में एक है अश्विनी दुबे, उनको हमने खड़ा करवाया था, जो मैं जानता था काफी एमपी में लोगों को। तो उनको 11,000 वोट मिले थे खजुराहो से, खजुराहो कॉन्स्टिट्यूंसी से। खजुराहो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, आपको पता होगा, वो कटनी तक आती है टीकमगढ़ के साथ। नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव आदमी नहीं चाहिए ना उनको, तो जो है ना, जो हुआ बन गया जो है ना, मोदी है तो मुमकिन है टाइप का जो स्लोगन से जो है ना, दे आर बीइंग एश्योर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। तो दे डोंट वांट। नहीं तो हमें पॉलिटिकल सवाल ये था, आपने खर्चा कितना किया था अपनी इलेक्शन के लिए? अराउंड 4 लाख रुपीज। अच्छा, ठीक है, पर वही तो चक्कर है ना, मनी पावर के बगैर। नहीं 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 नहीं, आप तो कह रहे हो मनी पावर, हम उसी पे आ रहे थे कि हमारी 2 स्ट्रेटेजी हैं इसमें। एक स्ट्रेटेजी है कि ये गरीबों के वोट खरीदते हैं, इस बार हम राजनेताओं को लूटेंगे। तो हमसे जुड़े जो गुरु लोग, गरीब लोग होंगे जिनके पास ये नेता वोट खरीदने जाते हैं, उनको मैथिली शरण गुप्त, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन का निर्देश होगा कि ये आए तो इन्हें भर भर के लूटो। जब इनको लूट लो, इसके बाद जो है फिर हम आपको आपके चंद्रगुप्तों की सूची देंगे, उसको हाथ में लेके निकलना है, कैसे हम विजय बनाएंगे। तो मिस्टर भूषण हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतने पर जो है ना नंबर है, चुनाव चिन्ह ये है, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। ये जो है निर्देश जारी होगा या इसकी पट्टियां जारी होंगी। और क्योंकि उन्हें वो इसलिए नहीं जुड़े हैं कि आपको पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है कि उनको 5 मौलिक अधिकार, जिसमें पोटेंशियल का रोजगार भारत का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार उनका अधिकार होगा। तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शिक्षा के लिए नहीं होगा, आपकी जो पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा व्यवस्था होगी, और वो भी एक साथ नहीं दी जाएगी। आपके पूरे जो पोटेंशियल को रियलाइज करने का रोड मैप बनाकर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाएगा, जिसे हम माइलस्टोन कह रहे हैं। और उस माइलस्टोन में हम 4 चीजें दे रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद संस्कार, क्योंकि हमने तो ये संस्कार विहीन युवाओं की एक फौज खड़ी कर दी है, क्योंकि उन्हें ना तो उनके माँ बाप ने संस्कार दिया, ना समाज ने दिया, ना देश ने दिया, ना शिक्षा व्यवस्था ने दिया। तो हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हो गए हैं कि जो संस्कृति और संस्कार जिसकी धरोहर हुआ करता था, वह भारत जो है संस्कार विहीन युवाओं का जो है ना आज वो बना हुआ है, पुंज बन गया है, जिसमें ये स्थिति बनी हुई है। तो आप मुझे डॉक्यूमेंट जो भेज रहे हैं आप भेजिए, तो मैं I'll go through it, then I'll revert back to you। गुप्ता साहब, मैं ये पूछ रहा था, आपका बजट कितना है, एनुअल बजट? 0। अच्छा, नहीं तो आपने जो कलेक्शन की होगी ऐसे कोई कलेक्शन नहीं किया, I have not collected even a single penny। ओह, और कब फॉर्म कब हुई, रजिस्टर कब हुई ये पार्टी ऐसे भी? It was registered on 10th November 2024। अच्छा, I have not collected a single penny and I would not be collecting a single penny। अच्छा, आप रिटायर कब हुए गुप्ता? सुपरनुएट September 2020। अच्छा, ओके, फाइन। चलिए, इट्स ग्रेट टू टॉक टू यू, वी हैड अ गुड डिस्कशन। मुझे आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट भेजेंगे? ये हमने आपको बताया था कि दिस डिस्कशन इज आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी पब्लिश्ड ऑन क्राइम फ्री भारत मिशन। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। आफ्टर 15 days I will be sending the link of our discussion also। ठीक, अरे वाह, वेरी नाइस। So that will you can share with your friends and other people also। You can share in your mench also। वेबसाइट भी होगा अपना? हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है। अच्छा, दूसरा कितना स्टाफ, कितना आपको सपोर्ट के लिए? 4-5 लोग हैं? 0। अरे वाह, इट्स a one man army and this one man army will change this country। एक व्यक्ति देश को बदल देगा। आपका वैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है गुप्ता? मैं 1960 का बॉर्न हूँ, अक्टूबर का। 60 अक्टूबर? नहीं, मैं वो, ठीक है। मैं और मेरा फैमिली वाइज आपका, वी हैव वन डॉटर, बॉम्बे रहते हैं, शी इज इन जर्मनी, अराउंड 42 एज, जो सल्डॉफ में है। 30 साल से बॉम्बे में जर्मन सिटीजन बन गई है, और 2 साल पहले, और वो मैरिड टू पंजाबी भी है। पंजाबी बॉम्बे में इसलिए सेटल हो गए बिकॉज being Navy being the most predominant base of Bombay being the most predominant base of
Indian Navy, so my wife could start her practice even while I was in service. She's allowed to. She started. तो मैंने स्टार्ट करेगी तो कंटिन्यू कर पाएंगे, तो इसलिए हमने किया था। तो ये आपका और आपकी फैमिली का क्या है? आई एम हैविंग 2 daughters. अच्छा, क्या कर रही हैं? Pardon me? What are they doing? Oh, one of them, she is vice president in one of the heading a legal department in London. Her husband is a director and ठीक है. So yeah. And she's the elder one. हाँ. तो वो तो मतलब ऑन असाइनमेंट गई हुई है ना, नॉट शी नॉट सिटीजन। चलिए, ये पर्सनल बातें अपन, चूंकि ये रिकॉर्ड पे जा रही हैं, इसलिए अपन को पर्सनल बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, नॉट टू वरी। हाँ। और आपका बट ये अदर एनी अदर फोन यू हैव एक्सेप्ट दिस? नहीं, यही फोन प्रेडोमिनेंटली यूज करता हूँ। अच्छा, ठीक है, आप भेज दीजिए, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। ठीक। और मैंने आई हैव शेयर्ड माय विजिटिंग कार्ड विद यू, और ईमेल भी कर सकते हैं। आई गॉट योर नंबर फ्रॉम योर विजिटिंग कार्ड ओनली। हाँ बिल्कुल, ईमेल में। हाँ बिल्कुल, you had posted it in my group, so I got your number from there only. हाँ बिल्कुल, श्योर है ना। चलिए, and I take this opportunity to invite you, join hand, we will transform this nation and we will defeat all political party and all politicians because concept is so powerful. yes. और इसमें जो है ना, हम ना कोई धरना देंगे, ना कोई जुलूस निकालेंगे, केवल अपने लोगों को जोड़ने का, और ये ऐप के माध्यम से जोड़कर 6 मेरिट लिस्ट बनाकर सत्ता का ताज भी आम आदमी के सिर पे ला देंगे। भविष्य में जो है देश का प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आएगा। मतलब मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो कौन सी, मतलब मेरिट लिस्ट ऑफ अपने लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट है, एक ही क्राइटेरिया है। अच्छा, he who incorporates enrolls maximum people, that's the merit list, correct? Basis. Pardon me? मतलब he who enrolls maximum number of people, he is higher up in the merit list, like that. Basically, there is a 4 way of getting numbers. Number 1, you will add the person that you will get 1 marks. Number 1. Number 2 जो है, अभी वैसे 100 दे रहे हैं, वो it will be recalculated and it will be made 1 marks, right? इसमें जो सिस्टम है कि हर रविवार को आपको अपने लोगों को इकट्ठा देके संकल्प दिलाना है, वो भी रोटेशन के आधार पर अच्छे भारत का। तो जो लोगों को इनवाइट करेगा उसको 3 नंबर मिलेंगे। जो खुद जो है उस संकल्प में जाकर सम्मिलित होगा और संकल्प लेगा, उसे 1 नंबर मिलेगा। और जैसे मान लो मैंने आपको जोड़ा और आपने किसी दूसरे को जोड़ा, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, मुझे 0.15 नंबर मिलेगा। जो तो दूसरे लेवल पे जो जोड़ेगा तो उस आपको जो है ना 1 नंबर मिलेगा, मुझे 0.10 मिलेगा। और यदि उसका 3rd लेवल पे जाएंगे तो मुझे 0.05 मिलेगा और सामने वाले को 1 नंबर मिलेगा। तो बेसिकली आई शुड कंटिन्यू टू मोटिवेट पीपल टू ऐड देयर पीपल। और इसके इन नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट बन रही है, और वो मेरिट लिस्ट गांव की बन रही है, मोहल्ले की बन रही है, शहर की बन रही है, जिले की बन रही है, राज्य की बन रही है, और देश की बन रही है। And that is visible on the website right now also? नहीं, it is basically अभी जो है वो अवेलेबल है, लेकिन अभी वो एक इंटीग्रेटेड लिस्ट चल रही है। बहुत जल्दी जो है ना इसकी 6 में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए वी आर क्रिएटिंग ए न्यू ऐप फॉर दैट। अच्छा, बट अभी राइट नाउ देन हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? लेस देन 18,000, नहीं, लिटिल मोर देन 18,000। अच्छा, 18-20 जो भी है, ठीक है। देखिए, एक बार लोगों तक ये बात अपने लोगों तक पहुंचाएंगे ना, तो ये तो एक रात में जो है ना, यदि आपका एक चीज वायरल हो जाए तो इट इज डूएबल इन ए सिंगल डे। सामने वाले को समझना ना चाहिए, उनका लाभ है। I understand totally. और इसमें ये जो है, even the members list is available on the website also even now. No. That will not be available, and basically उनके नंबर वगैरह भी आगे सीक्रेट रहते हैं, वो सब चीज नहीं रहेगी, because the people should not be in position to harm them. यहाँ तो इतने दुष्ट लोग हैं, इनका यही काम है। एक होटल में जो है 100 से ज्यादा इंजीनियर को बिठा के रोज जो है ना फर्जी रील बनाने वाले अच्छे लोग तो नहीं है ना। ठीक है, नहीं यार, वो तो बैड पीपल। It's a pleasure talking to you, Maitri ji. Mr. Bhushan, let's join hand. Yeah, आप मुझे भेजते हैं, I'll revert as soon as possible. Okay, that will be great. Thank you. Thank you, sir. Okay, bye.